Dear student, today we have to start another topic, that is 3.8. This says temperature dependence of resistivity. Yesterday we have completed the color coding, but today I have sent one file on the WhatsApp group. In that particular file, first year and second year revised syllabus is written there. Government has revised the syllabus for this year because of the COVID-19. So in that, the color coding is removed. So that color coding I am not repeating again. Today I am not repeating the color coding because color coding has yesterday we have completed, but that color coding is not there in the syllabus for this year. क्लियर हो गया? कल जो हमने टॉपिक किया था कलर कोडिंग का, वो कलर कोडिंग इस साल के सिलेबस के लिए निकाल दिया गया है. क्लियर हो गया? मैंने तुमको व्हाट्सएप के ग्रुप में एक फाइल भेजा हुआ है फिजिक्स का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का. तो सेकेंड ईयर के इसमें तुम देखोगे अभी जो इस साल जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है, कुछ टॉपिक्स उसमें से निकाल दिए हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इसमें से कलर कोडिंग का टॉपिक निकाल दिया गया है. क्लियर हो गया? तो आज का ये टॉपिक हमको करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. इस टॉपिक में वी हैव टू सी दैट हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. So here we have to see that the resistivity of a material is directly proportional to the temperature. Okay, in case of different temperature, different material will have different temperature dependency. They will not exhibit the same type of temperature. Every material, if you take the example of a copper and if you take the example of a silver, both are conductors, बट बोथ विल नॉट हैव द सेम टेम्परेचर डिपेंडेंस. दोनों में क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंसी सेम नहीं होगा. तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर क्या है? सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस ऑफ टी नॉट. For this is the direct formula. There is no derivation for this formula. We have to understand each and every parameter. What do you mean by rho t? What do you mean by rho naught? Rho t nahi, rho t means this rho t is the temperature, resistivity of temperature at T. Rho t indicates what? Resistivity of at temperature T. What is rho naught और rho zero? Rho zero यहाँ पर है. Rho zero क्या बोलता है? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस में भी बोल सकते हैं या इनिशियल टेम्परेचर है, और ये है टेम्परेचर एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. सो रो नॉट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज टी नॉट? T naught is the temperature at 0 degree centigrade. What is alpha? Alpha is the temperature coefficient of resistivity. From this relation, what we conclude? We conclude that rho T is equal to rho naught into ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा T माइनस T naught. Alpha indicates what? Temperature coefficient of resistivity. 7 This is rho T. Rho T is what? Resistivity at temperature T. So what is alpha? Alpha is the temperature coefficient of resistivity. For metals, alpha is positive. जितने भी मेटल्स हैं, सारे मेटल्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. और अल्फा का वैल्यू कितना रहता है? अल्फा का वैल्यू जो है दैट इज लाइज बिटवीन 10 टू द पावर ऑफ -2 to 10 to the power of -4 per degree centigrade. In case of a conductor, resistivity of a conductor increases linearly with increase of temperature. इसका मतलब क्या है? जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा.
Okay, as the temperature increases, the resistivity of the material also increases. So if we plot a graph of resistivity versus temperature of a copper material, we will get a graph. What the graph will show? This graph shows that temperature increases, okay, as the temperature resistivity also increases. So the graph is there in this is the graph. On the y-axis, resistivity at a particular temperature is taken, temperature is taken on the x-axis. So how the graph is there? Graph is in the linear form. इस तरह से increase होगा. This increasing case of this graph is for the copper. What this graph shows, that the resistivity increases as the temperature increases. Initially the resistivity at the initial temperature, the temperature will be less, resistivity will be less. But as the temperature is increased, temperature जैसे जैसे बढ़ेगा, resistivity क्या होगा? Increase होगा. ये किस केस में होता है? Metals के केस में. In case of a metal, the resistivity of the metal increases as the temperature increases. The first point what we have to do, we have to understand that all the metals are having positive temperature coefficient. Okay, इसका मतलब क्या है? अल्फा क्या है? सबके केस में पॉजिटिव है. अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा. ये किस केस में होता है? मेटल के केस में. सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स. हमें दो चीज़ देखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द मेटल्स एंड द सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. तो मेटल के केस में हमने क्या देखा कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. तो इस सेक्शन में हमें क्या मालूम पड़ रहा है? वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट टेम्परेचर, as the temperature is increased, resistivity is also increased. So resistivity of a metallic conductor is directly proportional to the temperature. So resistivity कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट वी कंक्लूड दैट द resistivity will increase as the temperature increases. So this is the formula for the resistivity. This is the temperature dependence of the material in case of resistivity. Since resistivity is directly proportional to the resistance, so the same formula can be written as जैसे ये रो T इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट है. तो सेम फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. तो ये भी फार्मूला हम आगे देखेंगे. तो ये किसके बेसिस पर है? रेजिस्टिविटी के बेसिस के ऊपर है. सिमिलरली वी हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो. सो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा है? हमने रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर देखा है, मेटल्स देखा है. सो हियर व्हाट हैपेंस? अल्फा वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अल्फा. इट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. मेटल के केस में ऑलवेज अल्फा इज पॉजिटिव. ये अंडरलाइन किया हुआ है. दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव एंड लाइज बिटवीन 10 टू द पावर ऑफ -2 टू 10 टू द पावर ऑफ -4 पर डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या है? जो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टिविटी वो पॉजिटिव है. और वो किसके बीच में कितना प्रेजेंट है? उसका वैल्यू कितना है? वैल्यू इज 10 टू द पावर ऑफ -2 टू 10 टू द पावर ऑफ -4 पर डिग्री सेल्सियस. ये मेटल्स के लिए है, मतलब कॉपर, सिल्वर, इसके केस में ये रेजिस्टिविटी है. तो वन मोर थिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट इन केस ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है करस्पॉन्डिंगली रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा. ओके, अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को अगेंस्ट रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर ए कॉपर, तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलेगा. So from this graph what we conclude? On the y axis we have taken the resistivity,
ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द टेम्परेचर. सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा. तो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इंक्रीजिंग है, लीनियर ग्राफ इट इज देयर. सो दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर रहा है. ओके ये किसके लिए हुआ, मेटल्स के लिए. अगर मेटल्स के अंदर अभी दो चीज़ हमको देखना है. फर्स्ट वी हैव टू सी द नाइक्रोम. नाउ व्हाट इज नाइक्रोम. नाइक्रोम इज ए अलॉय. अलॉय किसे कहते हैं, अलॉय इज दैट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 or 2 एलिमेंट्स. तो नाइक्रोम में क्या क्या प्रेजेंट है, निकल है, आयरन है और क्रोमियम है. सो नाइक्रोम जो बनता है इट इज़ मेड अप ऑफ निकल, आयरन एंड chromium. All these three things are combined together to form the nichrome. Okay, so nichrome के केस में resistivity क्या है, resistivity is very large and it has weak dependence on temperature. What this nichrome indicates, nichrome का ग्राफ अगर हम देखते हैं तो what it indicates, it is least dependent on the temperature. Resistivity is very large and it has weak dependence on the temperature. अब ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में क्या देखा है हमने, 200 डिग्री टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 एंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रेजिस्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, 1.8 की तरफ आएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक्रीज होते जाएगा. सो जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ इंक्रीजिंग, बट फॉर विच वैल्यू, हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इसमें. सो नाइक्रोम इज कंसिडर्ड टू बी द एलिमेंट, ओके, कंडक्टिव एलिमेंट. द रेजिस्टिविटी इज वेरी लार्ज एंड इट हैज़ वीक डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर. ओके, अभी सिमिलरली इफ यू सी फॉर द सेमी कंडक्टर. नाउ ऑलरेडी वी नो व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स. Semiconductors are the materials which are in between the conductors and the insulators. At room temperature, they will conduct the electricity. Below the room temperature, they will behave as an insulator. So in case of semiconductor, what will happen? The resistivity decreases with increase in temperature. ग्राफ कैसे आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है. ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से आ रहा है, ऐसा आके ऐसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इधर क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यू सी एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर वे, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग. तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. व्हाट द सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इट विल डू, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. तो ये रेजिस्टिविटी किसके बारे में हमने देखा है अभी, सेमीकंडक्टर. और एक बार समझ लो, कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा. सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा. तो ये जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग मोड में आ रहा है. ग्राफ किस मोड में है, डिक्रीजिंग मोड में है. इनिशियली कम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है. ये देखो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे टेम्परेचर बहुत कम है तो रेजिस्टिविटी विल बी लेस. मगर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसे टेम्परेचर इफ यू आर गोइंग इन दिस वे, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजिंग. सो in case of a semiconductor we understand that the alpha value will decrease. It is negative for the semiconductor. अल्फा वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, नेगेटिव रहेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर. सो व्हाट द कर्व विल शो, कर्व शोज दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. What the graph is showing? Graph is showing that as the temperature is increased, resistivity will decrease. Further, ये तो हुआ graphical representation. मगर now we'll see the qualitative understanding of this temperature. We know
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी नो, n e square tau by m. So if you put this value, then what will happen? M will go in the numerator. Denominator में क्या बचेगा? n e square and tau. What is this tau? Tau is the relaxation time. What is n? n is the number of electrons. So इसका मतलब क्या है? ये डिनोमिनेटर में n है और tau है, तो कंडक्टिविटी जो है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर हो गया? सो व्हाट दिस थस रो इज व्हाट? इट डिपेंड्स इनवर्सली विथ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो. अल्फा इज नेगेटिव फॉर द सेमीकंडक्टर. तो फर्स्ट इसमें अभी हमने सेमीकंडक्टर को ख़त्म किया. अब ये सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे आगे का, तो इतना कंप्लीट कर लो. सो ये जो फर्स्ट वीडियो इसमें हमको कहाँ तक मालूम हो गया? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर.